Hello friends, welcome to today's lecture of Standard 12, chapter number 10, Vector Algebra. In the last lecture, we have studied exercise 10.3, dot product, scalar product and their properties. Now, in today's lecture, we learn vector product or cross product. The definition is vector product of two non-zero vector a bar and b bar. It is denoted by a cross b. It is multiple symbol, but say that cross a cross b and defined as a bar cross b bar equals to magnitude of a bar into magnitude of b bar into sin theta into n cap. This n cap is a normal vector which are perpendicular to a bar and b bar. Theta is the angle between a bar and b bar. This is an angle. But now see, theta having limit is 0 is less than equal to theta is less than equal to pi. And n cap is a unit vector perpendicular to both a bar and b bar. This is the definition of vector product or cross product also. So, vector product, the name vector says that the answer is vector. A bar, B bar. Be any two vector, theta lies between them, and this is an n cap. N cap is perpendicular to A bar and perpendicular to B bar also. Then the definition says that A bar cross B bar is equals to magnitude of A, magnitude of B into sin theta into n cap. This n cap says that it's an vector. N cap is an unit vector, so that becomes only or ijk from, and that ijk from multiple of all scalar, so it is completely makes a vector. So the answer becomes a vector. Now this sin theta gives the conditions. In last dot product we have the cos theta, and because of theta we have a parallel and perpendicular condition. Now same here, if theta becomes a 0, then some observations are here. That observations first is what? The answer becomes vector, so that is the vector product. Or this cross n says that cross product also. The answer is an vector. Also theta is equals to 0 means what? Vectors are अब 0 है मतलब vectors are collinear or parallel condition, parallel vectors. If theta equals to 0, then sin 0 is 0, then A bar cross B bar is equals to 0. Is a dot product A bar dot B bar equals to 0, that means what? Vector is a perpendicular. But now in a cross product, if product is 0, then they are collinear or parallel. Means because of this we say that what? Some two vectors which are having the 0, that is A dot A cross A, B cross B, C cross C is always V0, means same vectors which have cross product is equals to 0. Then I cross I is equals to J cross J is equals to K cross K is equals to 0. Same आ रहा है तो मतलब 0 आना है, because of angle between them is 0. Next, if theta is equals to 90, then sin 90 is 1. So A bar cross B bar is equals to what? Magnitude of A into magnitude of B. Then A bar cross B bar is equals to magnitude of A, magnitude of B. Then n cap is here. So अगर प्रोडक्ट 90 एंगल आता है मतलब परपेंडिकुलर आता है, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड के साथ में n कैप आता है. दैट इक्वल्स टू व्हाट? I क्रॉस J. Here ijk from we make as ijk from
then both are mutually perpendicular to each other. So I cross j, तो आंसर आने वाला है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ I, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू एन कैप, दोनों के ऊपर का परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा k, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज 1, सो दैट I क्रॉस j इज इक्वल टू k. देन j क्रॉस k आंसर आएगा I, एंड देन k क्रॉस I आंसर आएगा आपका j. So this is a circular motion cycle. We can check it on this solution also, that I, J and K. I cross J आंसर आएगा K, J cross K आंसर आएगा I, K cross I आंसर आएगा J. Now dot product is commutative but cross product is not commutative. Then A bar cross B bar is not equals to B bar cross A bar. So it is equals to what? माइनस ऑफ B बार क्रॉस A बार. अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो माइनस साइन बाहर आएगा. सेम अगर रिवर्स करना है तो माइनस, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, फिर उल्टी साइकिल घुमाना हो तो I क्रॉस K आंसर आएगा माइनस ऑफ J, K क्रॉस J आंसर आएगा माइनस ऑफ I, J क्रॉस I आंसर आएगा माइनस ऑफ K. दैट इज द सम ऑब्जर्वेशंस आर हियर. नाउ साइन थीटा के ऊपर वहां पे हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स. तो यहाँ पर भी साइन थीटा के यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास, बट यहाँ पे टेकिंग मैग्नीट्यूड ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ताकि हमारा जो एन कैप है वो 1 हो जाए. एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इसी से निकाल सकते हैं, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम इससे निकाल सकते हैं, दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज दैट इक्वल्स टू व्हाट, सिंपली ए बार क्रॉस बी बार. तो ये वाले कुछ फार्मूले हैं आपके पास, ये आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि ऑब्जर्वेशन आपका सिंपल में समझ सके. अगर ऑब्जर्वेशन समझ गए हो तो अलजेब्रा भी सिंपल सा है, प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है. जहां पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब तो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार एडिशन में होती, तो हम कर सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार. सेम एज स्केलर मल्टीपल आता हो तो लैम्बडा ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ए बार क्रॉस बी बार और ए बार क्रॉस लैम्बडा ऑफ बी बार. तो जो स्केलर है वो भी अंदर जा सकता है, उससे एग्जाम्पल्स के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है. देन हाउ टू सॉल्व दैट एक्चुअली वर्किंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. लेट ए इज इक्वल्स टू A1I प्लस A2J प्लस A3K and B bar is equals to B1I plus B2J plus B3K. Then using directly क्रॉस प्रोडक्ट हम ये कर सकते हैं कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू, हम लेंगे डिटर्मिनेंट I J K और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ I इन फॉर्म ऑफ A व्हाट, A1, J का A2 और K का A3 हम लिखेंगे A1 A2 A3 एंड नाउ फॉर B का हम लिखेंगे B1 B2 एंड B3. और हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में डिटर्मिनेंट सॉल्व करे हैं, उसी का यूज करके हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे. आपको थोड़ा बता दूं दैट आंसर इज व्हाट, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बाय फर्स्ट रो I फर्स्ट रो अगर ले रहे हो तो रो एंड कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या, इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो बचा A2 A3 B2 B3. टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट B2 B3 माइनस B2 A3. सो A2 B3 माइनस B2 A3. सेकंड साइन ऑलवेज माइनस. देन व्हाट द आंसर, इसका भी रो एंड कॉलम छोड़ दो, रो छूट गई कॉलम छूट गया, बचा A1 A3 B1 B3. टेक क्रॉस प्रोडक्ट A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस लास्ट वाला K, इसका भी रो एंड कॉलम छोड़ दो,
रो छूट गई, कॉलम छूट गया, तो बचा A1 A2 B1 B2। टेक क्रॉस प्रोडक्ट A1 B2 माइनस B1 A2। आप इस प्रकार से इसे एक्सपांड कर सकते हो। आप इसे एक्सपांशन में आपको ऐसे ही करना है, ऐसे समझना है, ताकि पूरा आंसर आपको इजीली याद हो सके। नाउ दिस इज एन एक्चुअल वर्किंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको ये अगर वेक्टर प्रॉपर मिले हैं तो आप इसी प्रकार सॉल्व करोगे। अगर प्रॉपर वेक्टर नहीं मिले, मैग्नीट्यूड मिला है, एंगल मिला है, तो आप यूज करेंगे दैट इज ए बार क्रॉस बी बार की ये वाली डेफिनेशन। दोनों प्रकार से आप आंसर निकालना है, आंसर निकाल भी सकते हो और इजी भी है। तो लेट वी टेक 10.4 एक्चुअल वर्किंग एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट आपका फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। इफ ए बार इज I माइनस 7J प्लस 7K, बी बार इज इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 2K। तो आपको इन दोनों का क्रॉस निकालना है और फिर उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। लेट वी डू दिस। एग्जांपल आपके पास ए बार इज I माइनस 7J प्लस 7K, बी बार है 3I माइनस 2J प्लस 2K। आपको निकालना है दोनों की मैग्नीट्यूड, ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड। सो पहले हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअल वर्किंग में हमने किया था व्हाट, I J K। अब ए के I J के कॉम्पोनेंट कौन कौन से, 1, यहाँ पे -7 और यहाँ पे +7। बी के लिए क्या है हमारे पास, 3, -2 और 2। अब आपको इसके एक्सपांड करना है। एक्सपांशन दैट वेरी सिंपल एक्सपांशन, दैट व्हाट, I इन ब्रैकेट, बोलिए I का रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचेगा हमारा -7 2 जार -14 और फिर माइनस साइन, 7 2 जार 7 माइनस 2 जार -14 यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस ब्रैकेट में लिया है। देन माइनस ऑफ जे। अब बोलिए जे का रो और कॉलम छोड़ दो, तो बचा हमारा 1 7 3 2, 1 2 जार 2 माइनस 7 3 जार 21। देन प्लस के इन ब्रैकेट, चलो रो एंड कॉलम के भी छोड़ दो, तो बचा 1 -7 3 -2, 1 इंटू -2 -2 माइनस -7 इंटू 3 -21। अब इसे सॉल्व करेंगे हम इजीली, तो हमारे पास बचेगी I -14 +14 माइनस जे, आंसर आएगा आपका 2 -21 -19 प्लस के आएगा आपका -2 माइनस प्लस 21। दैट इक्वल्स टू I -14 +14 0 माइनस प्लस 19 जे -2 प्लस 21 प्लस 19 के। देन 19 जे प्लस 19 के, ये आया आपका ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू 19J प्लस 19K। अब आपको निकालना था, एक्चुअली क्वेश्चन था आपके पास कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो लेट वी टेक मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंपली अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ I तो है ही नहीं, J इज 19 स्क्वायर प्लस K 19 स्क्वायर, डेट व्हाट 19 स्क्वायर है, 19 स्क्वायर अगर बाहर निकाले तो 19 और ये बनेगा आपका √2। तो आपका आंसर आएगा 19 √2। सिंपल है, आपको सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है यूजिंग जस्ट डिटर्मिनेंट, यू गेट सिंपल आंसर। एग्जांपल नंबर 2 एज सेम एज हियर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ वेक्टर ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार वेयर ए बार इज गिवन एंड बी बार इज गिवन। आपको निकालना है कि यूनिट वेक्टर टू ईच ऑफ वेक्टर ए बार प्लस बी बार के ऊपर भी और ए बार माइनस बी बार के ऊपर भी। लेट वी डू। सो आपको दिया है ए बार, आपको दिया है बी बार और आपको निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार। अगर निकालना है परपेंडिकुलर वेक्टर दो वेक्टर की, तो सिंपल दोनों का क्रॉस लेना है। तो सबसे पहले हमें एडिशन करनी पड़ेगी ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार की। सो एडिशन है आपके पास ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 3i। तो हमने लिया एडिशन 2j प्लस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k, 3i प्लस i दैट इज 4i,
2j प्लस 2j 4j 2k माइनस 2k 0, तो हमने वो लिखा नहीं. सेम है सब्ट्रैक्शन 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस ऑफ b बार, दैट इज b बार के साइन प्लस थे तो माइनस साइन, माइनस 2j और माइनस हो तो प्लस 2k. 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j 0, 2k प्लस 2k 4k. तो आपको मिल गया a प्लस b बार और a माइनस b बार. नाउ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब आपको निकालना है a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार. आपको ये वाला निकालना है. तो लेट वी डू एग्जांपल्स. हमने पता है कैसे निकालना है. दैट i j k कोएफिशिएंट ऑफ i j k इन टर्म ऑफ a प्लस b कंपोनेंट 4 4 0 और यहाँ के क्या आएंगे आपके पास 2 0 4. अब इसे एक्सपांड करेंगे आप, तो एक्सपांशन आपका आने वाला है. सॉल्व करने से आपको मिलेगा 16i माइनस 16j माइनस 8k. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड यूनिट वेक्टर. दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू बोथ. सो द परपेंडिकुलर हमने निकाला, बट अब इसका निकालना है हमें यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर अब निकालेंगे हम इसका, दैट इज n कैप. हमने निकालना है तो सिंपली इस किसका ऐसे करेंगे हम. सपोज हमारा यही होगा n बार, तो n बार से हम n कैप कैसे निकालते हैं, दैट इज n बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार. सो दैट n बार हमारा आया, समझो ये है हमारा n बार 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन n कैप, दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वेयर प्लस माइनस 16 स्क्वेयर प्लस माइनस 8 स्क्वेयर. देन इट इज सॉल्व एज, सॉल्व करने से हमें मिलेगा 16 का स्क्वायर लिखा हमने 8 2 16, इसे भी 8 2 16 और ये 8 वाला स्क्वायर. टेक 8 कॉमन बिकॉज स्क्वेयरिंग है, आउटसाइड आएगा तो 8 आएगा, बचा 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 और यहाँ पे 8 बाहर गया सिंपली 1. 4 प्लस 8 प्लस 1 9, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3. टेक 8 इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, सो व्हाट 8 कॉमन निकला, बचा 2i 2j और k हमने लिखे. 8 8 गेट कैंसल. देन द लास्ट वाला आंसर है हमारे पास 2i 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3 ऑफ k, और ये है आपका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन a बार प्लस b बार एंड a बार माइनस b बार. नेक्स्ट वाला नंबर 3 एग्जांपल्स है. इफ यूनिट वेक्टर a बार मेक्स एन एंगल π/3 विथ i, π/4 विथ j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k, then find theta and hence the component of a bar. अब we have given that a unit vector a bar. अगर आपके पास वेक्टर a बार है और वो यूनिट वेक्टर है तो हम इसे लिखेंगे li प्लस mj प्लस n के फॉर्म में. और व्हाट इज l m n, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज l, दैट इज cos ऑफ अल्फा. अल्फा एंगल मिक्स विथ i, दैट इज cos ऑफ π/3. देन व्हाट इज बीटा, cos of π/4. What is gamma? Cos of theta. Then using that identity you can do easily. So a bar is a unit vector, तो हम लिखेंगे a cap because unit vector है तो li प्लस mj प्लस nk. किसी भी यूनिट वेक्टर को हम इस टर्म में लिख सकते हैं. What is l? L is a cos alpha i, cos beta j, cos gamma k. We have given that what is alpha? Alpha is π/3, तो cos π/3i प्लस cos π/4 of j plus cos of theta of k, using the value that alpha by k cap is equals to what, तो वो बन गया हमारा 1/2i 1/2j cos theta of k. Now as we know a cap की मैग्नीट्यूड बनती है हमारे पास 1. देन यूज दिस आइडेंटिटी दैट अंडर रूट ऑफ 1/2 स्क्वेयर प्लस 1/√2 स्क्वेयर प्लस cos गैमा, गैमा को हम बोलेंगे समझो n, तो n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज n इज एन हियर. देन 1 स्क्वेयर इज 1, दैट इज 1/4 अंडर रूट गेट कैंसल, 1/2 प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. नाउ यू गेट इजीली सॉल्व. सो द आंसर इज 1/2 प्लस 1/4 दैट इज 2/4 3/4 और ये बन गया आपका 3/4 प्लस n स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1. तो बन गया आपका, शिफ्ट किया उधर तो 1 माइनस 3/4, सॉल्व किया 1/4, यह आया आपका 1/2. सो कॉस गैमा इज इक्वल टू 1/2. देन व्हाट इज गैमा, तो वैल्यू ऑफ गैमा इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली पाई बाय
3 and then the answer is become pi by 3. तो आपको थीटा मिला, that theta equals to what? Pi by 3, that cos gamma or theta is equals to pi by 3. Then the components are also, the question is what? Find the component also. Then the component of A is, बोलिए यल आई, मतलब हमारा था 1/2 प्लस 1/√2 ऑफ जे प्लस 1/2 ऑफ के, और यहाँ पे ये आपका आंसर खत्म होता है. सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि अगर यूनिट वेक्टर है तो हम इसे लिखेंगे यल आई प्लस एम जे प्लस एन के, दैट इज कॉस अल्फा कॉस आई कॉस बीटा जे कॉस गामा के, और फिर उसे वैल्यू पुटअप करने से आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, ताकि आपका आंसर सिंपल में आ जाए. क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से आप बहुत सिंपल में सॉल्व कर सकोगे. क्वेश्चन नंबर 4 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. आपको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. द आंसर बिकम्स व्हाट? ए बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार माइनस बी बार क्रॉस एलएचएस लेंगे हम, बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार. बोलिए आएगा आपका ए बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार और माइनस बी बार क्रॉस बी बार. आपको पता है कि कोलिनियर वेक्टर यहाँ पे 0 होते हैं, तो ये बन गया 0 प्लस ए बार क्रॉस बी बार. बी बार क्रॉस ए बार को हम लिखना हो तो क्रॉस करके लिख सकते हैं, तो प्लस सिंबल आएगा ए बार क्रॉस बी बार. हमें उल्टा करके लिखना है तो माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है. माइनस बी बार क्रॉस बी बार 0, बिकॉज सेम वेक्टर यहाँ पे 0 आते हैं. देन ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार, द आंसर बिकम्स 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और दिस इज योर आरएचएस. वेरी सिंपल है, आप इजीली कर पाओगे. सिर्फ आपको एक्सपांशन करना है और ये पता होना चाहिए कि सेम वेक्टर पे यहाँ पे आंसर 0 आता है. नेक्स्ट नंबर 5 एग्जांपल्स है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड लैम्बडा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्बडा j प्लस म्यू के इक्वल्स टू 0. अब दोनों का क्रॉस है तो हम सिंपल यूज करेंगे व्हाट? i j k फॉर्म. कॉम्पोनेंट ऑफ i j k इन हियर 2 6 27 और यहाँ पे 1 लैम्बडा म्यू इज इक्वल्स टू 0. इसे एक्सपांड करेंगे i j के फॉर्म को